Here to discuss the chapter of class 9th in physics, force and law of motion, chapter number 9, which comes under physics section. So in my previous session, what we discussed, that what is the definition of force है क्या, बल किसको कहते हैं, what do we mean by balanced force, unbalanced force. So for that I gave you an example that if I put the pen here and it will be in the hanging position, it means here we are applying the balanced force, and if it falls down, it means if any point like here and here if we will put or we will apply any force, then it will be counted as unbalanced force. Afterward, today with respect we are going to move ahead, that what I told it to you in my previous session, that we will discuss about the law of motion. आखिर लॉ ऑफ मोशन है क्या, लॉ ऑफ मोशन को हम कैसे समझेंगे, लॉ ऑफ मोशन की आवश्यकताएं क्या है, what are the uses, what are the significance, how it plays an important role in physics. So for these kind of things we are here to discuss that law of motion. So first of all, we have to keep it in our mind that we are having three laws of motion. Law of motion is divided into three parts. First law of motion, second law of motion and third law of motion. गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम. So now we are here to discuss about the first law of motion. So actually what is first law of motion? If anybody or if someone will ask it to you that define first law of motion. So in the technical term, first of all I am going to repeat what I wrote it on the board, and afterward I will convince you that how you can memorize the definition of the first law of motion. So first law of motion, according to the definition, if anybody wants to maintain either in the rest position, either their motion property. Again I am repeating, if anybody wants to maintain either rest or motion property in a straight line, unless compelled to change the state by an applied force. अर्थात हिंदी में कोई वस्तु अपने विराम की अवस्था को, मीन्स स्टॉपेबल पोजीशन, अपने रेस्ट के पोजीशन को अथवा गति की अवस्था को, मूविंग पोजीशन को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल प्रभावी नहीं हो. ये आपकी परिभाषा है, ये आपका क्लासिफिकेशन है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का, कि कोई भी वस्तु अपने विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए. यही प्रॉपर्टी, टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ रेस्ट और टू रिटेन द प्रॉपर्टी ऑफ मोशन बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड इन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. और आपको याद रखना है कि हम लोग जो इनर्शिया क्या है, यही है. एनीबॉडी वांट्स टू मेंटेन द मोशन प्रॉपर्टी और रेस्ट प्रॉपर्टी, यही इनर्शिया का डिफिनेशन है. इट मींस व्हाट, द इंपॉर्टेंट रोल फॉर द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज दैट द definition of inertia comes out from the first law of motion. So for an objective, always keep it in your mind that in a question, might be possible for 1 marks question, the questionnaire will ask it to you that inertia derived from dash, first law of motion, second law of motion, third law of motion, none of these. So always the answer will be clear, Newton's first law of motion. न्यूटन के प्रथम गति के नियम से ही इनर्शिया की परिभाषा की उत्पत्ति हुई, कि कोई वस्तु अपने विरामावस्था या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल अभिक्रियाशील नहीं हो. अब
इससे एक डिस्क्राइबल थिंग है, व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट विथ यू, दैट यू विल आस्क इट टू मी दैट if that thing will be okay, then if we'll throw the ball, why it is not in the continuously moving position? सर, जब मैं गेंद को फेंकता हूं या जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो एक बार जब 65 का स्पीड आ गया तो वो कंटिन्यूअसली क्यों नहीं 65 पर ही रहता है? सवाल पूछा जा सकता है। आपको इसकी जानकारी होनी जरूरी है कि जब ये जो एक टर्म यूज हुआ यहां पर, अनलेस कंपेल्ड टू चेंज द स्टेट बाय एन अप्लाइड फोर्स, ये जो अप्लाइड फोर्स है इट विल कंटेन वेरियस फॉर्म, लाइक इन कार चक्का घूम रहा है, उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो जब चक्का और सड़क के बीच का सतह है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, एंड इट विल काउज टू डिक्रीज द स्पीड, एंड ड्यू टू कंटिन्यूअसली इनपुटिंग दैट फोर्स विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स, वो अंततः रुक जाती है। लेकिन अगर हम निर्वात में चले जाएं, इफ विल गो इनटू द वैक्यूम एंड ऑल, and if we will throw something, we will see that they will carry the property of these things. They will carry the property of these things. So always you have to rememberize that the definition of inertia comes from first law of motion. अब है भाई सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब तो बता दिया आपने कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है कि विराम अवस्था या गति की अवस्था को तब तक बनाए रखना जब तक कि कोई बाह्य बल अभिक्रियाशील नहीं हो। बहुत अच्छा, बच्चों को याद भी हो गया। ये भी बता दिया गया कि द डिफिनेशन ऑफ इनर्शिया कम्स फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, और भी अच्छा है। अब उसी प्रकार से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जो चर्चा करेंगे उसके पहले तुम्हारे को ये सदैव याद रहे, ऑलवेज यू विल कीप इट इन योर माइंड इन वेरी स्मूथ मैनर दैट हाउ वी कैन रिकॉल सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलवेज याद रखना, एक छोटा सा ट्रिक है। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट? F इज इक्वल टू ma। द फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज व्हाट? F इज इक्वल टू ma। बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण। F will be represented as force, M will be denoted as mass, and A will the denomination or used for the representation of acceleration. F is equal to ma. This term comes from second law of motion. अब देखो कितनी आसानी से मैंने तुम्हें बताया कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से इनर्शिया आ गया और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से बल का फॉर्मूला आ गया। बल जो निकालने का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू ma, यही बेसिक चीज है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, जिसको रिप्रेजेंट करने वक्त क्या कहा गया अब दिमाग में रखना है। अब इसका दो सेगमेंट है, एक सेगमेंट तो आज अभी हम लोग थ्योरेटिकल पढ़ेंगे, एक सेगमेंट नेक्स्ट क्लास में कैसे वो निकलता है इसको समझेंगे कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हाउ वी कैन फाइंड आउट F इज इक्वल टू ma। लेकिन अभी थ्योरी तुमको याद रखना है, बिकॉज इफ एनीबडी विल आस्क इट टू यू देन यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ इन द थ्योरेटिकल मैनर। तो अब उसमें क्या है कि उस फॉर्मूला से ही हम अपना सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लिख दिए कि इन द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन acceleration is directly proportional to the net force. Acceleration is directly proportional to the net force and inversely related to mass. Inversely related to mass. स्वाभाविक चीज है ना, जो वस्तु हल्की रहेगी समान बल लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। जो वस्तु भारी होगी, अब जैसे एक ही ताकत से, इसको सामान्य बोलचाल में आप लोग समझिए, एक ही ताकत से अगर मैं 6 साल के बच्चे को धक्का दूं और एक ही ताकत से मैं 25 साल का वैसा युवक को धक्का देता हूं जिसका वजन जो है 70-80 किलो है, तो स्वाभाविक है कि इफ यू विल पुश समवन देन व्हाट यू विल फील, वो आगे लुढ़क गया। तो वो जो एकाएक पोजीशन चेंज हुआ, गति में परिवर्तन हुआ,
वही एक्सेलरेशन है सामान्य बोलचाल में, दैट विल बी नोन एज एक्सेलरेशन। तो वो हल्का में क्या हुआ, ज्यादा हो गया, और ज्यादा वाले में क्या हुआ, कम हुआ। दैट्स व्हाई what here it wrote that acceleration is directly proportional to the net force and inversely proportional to the mass. After combining these things, F is proportional to mass into acceleration, F is proportional to mass into acceleration। और ये जो proportional का साइन होता है ना, इसी को हटाने के लिए when we will use equal sign on the place of proportional sign, we have to use any constant। So actually हम लोग सभी लोग ये करते हैं ना, F is equal to ma करते हैं, simply we are doing F is equal to ma, but वो होता नहीं है। F is equal to नियम से K into ma, where K is known as constant, and that term is responsible for the replacement of proportional sign to the equivalence sign। इस चीज को याद रखना है कि F समानुपाती M इंटू ए, तो समानुपाती को जब बराबर के चिन्ह के साथ हम रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, तो हमें एक कांस्टेंट, एक नियतांक की आवश्यकता होती है। सो इफ विल चेंज proportional sign with equal sign, then definitely we are responsible to use any constant, एक नियतांक की आवश्यकता होती है। So F is equal to K into ma, इस चीज को हम लोगों को याद रखना है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया है कि आई विल डिराइव यू दैट हाउ वी कैन फाइंड आउट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू ma। अभी मैं आपके दिमाग में रखने के लिए खाली चर्चा कर रहा हूं, ताकि यू विल नो द बेसिक फैक्ट्स और बेसिक थ्योरेटिकल फैक्ट्स कि व्हाट वी हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन, दैट व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, व्हाट इज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो अगेन आई एम रिपीटिंग द डिफिनीशन। Second law of motion represents that the acceleration of an object is directly proportional to the net force and inversely it is related with mass। ये डिफिनेशन हो गया। अब हम आते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आखिर है क्या? भाई थर्ड लॉ ऑफ मोशन में कुछ भी नहीं है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन हमेशा याद रखना, आप सुनते होंगे कि हमारे देश के जवान जो होते हैं, या जो स्वतंत्रता सेनानी थे, या जो आज जो भी लोग सीमा पे लगे हुए हैं, दे आर यूजिंग राइफल्स इन ऑफ वेरियस काइंड्स लाइक इंसास, AK-47 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो विभिन्न प्रकार के राइफलों का उपयोग करते हैं। तो आप जानते होंगे कि राइफल में गोली आगे की ओर निकलती है, लेकिन गोली तो आगे की ओर निकलती है, लेकिन झटका अगर इफ विल होल्ड द राइफल इन दैट मैनर, देन व्हाट विल हैपन, विल लाइक पुट द बट ऑफ द राइफल ऑन द शोल्डर। सो व्हाट इज हैपनिंग, bullets comes out, bullets will move toward the front direction, but it will create an jerk। वो एक जर्क की उत्पत्ति करता है जो हमारे कंधे पे लगता है। तो आपको याद रखना है इस कॉन्सेप्ट को कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दैट थिंग, दैट कॉन्सेप्ट व्हाट वी विल डिराइव टुमारो। टुमारो इट मीन्स इन माय नेक्स्ट सेक्शन। सो now again I am repeating first law of motion, which is responsible for finding out the definition of the inertia, second law of motion finding out the formula of the force, and third law of motion like net velocity, positive, negative, resultant zero। It means what, ultimately it is responsible for the derivation of the conservation of momentum। थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नथिंग, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया हुआ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर्मूला ऑफ फोर्स हुआ, थर्ड लॉ ऑफ